Good morning, student. Today we are discussing class 9, chapter number 3, diversity in living organism. आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइए और जहाँ किसी भी टॉपिक में डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट है, तो टॉपिक मैं आपको लोगों का क्लियर कर दूँगा. ओके. और डायग्राम भी बनाते जाइए और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, वन टाइम क्लिक कीजिए, देन एज द मोर अपडेट. चैप्टर फर्स्ट एज द कंप्लीट फंडामेंटल एंड फंडामेंटल एज द मेन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स सेल. Then chapter second include as a tissue. Tissue are two type, plant tissue and second क्या है, animal tissue. Then plant tissue में क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. And मेरिस्टेमेटिक it means dividing tissue and permanent tissue, these tissue derived from the meristematic. Meristematic tissue are three type: apical, intercalary, lateral. And permanent tissue are two type: simple and complex. Simple are three type: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And some condition parenchyma tissue, it is also called chlorenchyma and arenchyma. Then complex permanent tissue are two type: xylem and phloem. Xylem present different elements. First, tracheids. Second point, vessels. Third point, xylem fiber. Last point, xylem parenchyma. And phloem present different component: sheath tube, companion cell, phloem fiber, and last phloem parenchyma. Then as the topic complete, organism. इसको मैंने आपसे बोला था कि आप लोग इसको कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, पेज नंबर 85. एंड यहाँ पे जो मेंशन दिया था ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म एज द अकॉर्डिंग टू टू टाइप ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रेजेंट और absent, like as the prokaryotic and eukaryotic. Then prokaryotic include as the unicellular, then the kingdom Monera, and eukaryotic include unicellular and multicellular. Eukaryotic, unicellular, protista. Then multicellular include as the with cell wall, without cell wall. Without cell wall like as the kingdom, कौन सा kingdom आएगा, Animalia. And with cell wall include as the fungi and Plantae. But दोनों में डिफरेंस है. फंगस में क्या होगा, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग. अब इसके बाद आता किंगडम प्लांटी, और यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 85. ओके. देन द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन among plants depend on whether the plant body has well differentiated. अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया किस बेस पे किया गया कि डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. ओके. डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी लाइक एज द थैलोफाइटा. थैलोफाइटा एज द डू नॉट डिफ्रेंशिएट रूट, स्टेम, लीव्स. So it's the basis of classification: plant body differentiated and not differentiated. And generally as the kingdom Plantae include as a different type of division, and like this division as the Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm और लास्ट एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सब में लास्ट में क्या अटैच है, फाइटा. ओके. फाइट नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट एज द जो अटैच है फाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लास्ट
एंजियोस्पर्म. So at the first level of classification, plant body differentiated and not differentiated, and generally as the Theriophyta. Theriophyta do not differentiated root, stem, leaf. आप इसे इजली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट लीव्स है. एंड Theriophyta इंक्लूड एज द एल्गी. एल्गी मीन्स काई. ओके. Then whether a differentiated plant body has special tissue for a transport of water and other substance. Second level of classification present as a special type of tissue, and these special type of tissue include as the vascular bundle, and vascular bundle include as the xylem. And second point, phloem. So it is belong to the vascular bundle. ये दोनों किस में आ रहे हैं? Vascular bundle, xylem and phloem. So the what is the basis of classification? यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है यहाँ पे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंशिएटेड एंड नॉट डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. सेकेंड लेवल में क्या आएगा? सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू, ए स्पेशल टिश्यू, एंड दिस टिश्यू इट हैव द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल. एंड द थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट बियर सीड एंड नेक्ड सीड. So it is the basis of classification and include as a different division. First, Theriophyta. Second, Bryophyta. Third, Pteridophyta. Fourth, Gymnosperm. And last, Angiosperm. अब यहाँ पे आता फर्स्ट Theriophyta. ओके, फर्स्ट डिवीजन क्या है? Theriophyta. Theriophyta. और Theriophyta के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एल्गी. तो Theriophyta include algae. Plant they do not have well differentiated body design. इसके अकॉर्डिंग वो सब प्लांट आते हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन स्पेशल नहीं होता. ओके. तो एज ए स्पेशल मीन्स डू नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, stem and leaves. The plant this group commonly called algae. इसके अकॉर्डिंग जो आते हैं वो क्या आते हैं? algae आते हैं. ओके. Then these plant are predominant aquatic. जनरली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं. और ये रिप्रेजेंट करता है इसकी हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स द प्लांट्स आर फाउंड इन द स्पेसिफिक एरिया. एंड सम एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन Theriophyta. फर्स्ट स्पायरोगायरा, सेकेंड यूरोथ्रिक्स, थर्ड क्लेडोफोरा, नेक्स्ट चारा. सो इट इज़ द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन Theriophyta. इट्स द नेम ऑफ एल्गी. यहाँ पे जो दिया गया है पेज नंबर 86, एनसीईआरटी बुक अपने पास रखी है, उससे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे. तो पेज नंबर 86 में सबसे ऊपर दिया गया सम एग्जाम्पल like as the Spirogyra, Eurothrix, Cladophora, Chara. It's the example of, एग्जाम्पल क्या है? एल्गी के. और इनमें क्या होता है? डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. यहाँ पे प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता. तो ये पिक्चर आप लोग देख लीजिए. ये पिक्चर दी गई यहाँ पे. ये पिक्चर क्या है? यूरोथ्रिक्स. यहाँ पे क्या है? क्लेडोफोरा. नेक्स्ट क्या है? अल्वा, स्पायरोगायरा एंड लास्ट चारा. तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन Theriophyta. और मेन फीचर क्या है? डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स. मीन्स प्लांट बॉडी डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड. अब आता है Bryophyta. ओके. नेक्स्ट डिवीजन Bryophyta. ये क्या है? सेकेंड डिवीजन. और इसके पहले क्या था? फर्स्ट डिवीजन. फर्स्ट डिवीजन Theriophyta,
Second division, Bryophyta. And Bryophyta is known as amphibian of the plant kingdom. Amphibian means it shows both the feature terrestrial and aquatic. So the amphibian of the plant kingdom, amphibian, it verifies the terrestrial and aquatic. ये वेरीफाई क्या करा, टेरेस्ट्रियल और एक्विटिक. देन प्लांट बॉडी कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है बट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस. यहाँ पे क्या होता, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू absent like xylem and phloem. Then some example like as the moss, and moss scientific name Funaria, second Markensia, and third Rixia. So Rixia, Markensia, Funaria, it is the example of Bryophyta. Rixa, रिक्शा होता तो यहाँ पे रिक्शा के बीच से आप याद कर सकते रिक्सिया. रिक्सिया, रिक्शा में मारेंगे मार्केंसिया. ओके, ट्रिक बता रहा हूँ. तो रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया. रिक्शा मार्क पीटेंगे, मारेंगे उसे और वहाँ पे क्या फल आ जाएगा, फ्यूनेरिया. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा. फर्स्ट क्या, रिक्सिया, सेकेंड मार्केंसिया, थर्ड फ्यूनेरिया. और इसका जो मेन फीचर क्या है, इट इज नॉन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम एंड गिव रीजन. दिस डिवीजन इज नॉन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज इट्स द रीजन ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड इन लैंड, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर वाटर. So it verify both the feature. Then second point, these division absent specialized tissue like xylem and phloem. And what is the importance of these specialized tissue? It have the conduction of water, mineral and food material, one part of the body to the another parts. Okay. Then as the division Pteridophyta. अब यहाँ पे आता थर्ड डिवीजन, और थर्ड डिवीजन क्या है, टेरिडो फाइटा. देन एज द थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा, एंड इन दिस डिवीजन प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स. अभी तक क्या था, प्लांट बॉडी डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड, और ब्रायोफाइटा में क्या, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड लाइक स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर. बट टेरिडोफाइटा में क्या, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स. देन इन दिस डिवीजन प्रेजेंट स्पेशल टिश्यू, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू. तो द फंक्शन ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इट हैव द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट्स. And specialized tissue include as the xylem and phloem. Then example Marsilia, fern and equisetum. And common name of equisetum, horsetail. यहाँ पे बुक में मेंशन दिया हुआ horsetail. तो horsetail का जो साइंटिफिक नेम होता वो होता है equisetum. Equisetum. It is the scientific name of horsetail. Okay. Then Thalophyta, Bryophyta and Pteridophyta have nagged embryo. तीनों में जो embryo होता है nagged, and it is commonly called spores. तो Thalophyta, Bryophyta, Pteridophyta, embryo nagged and commonly called spore. The reproductive organs of plant. ओके, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं इनकॉन्सिपिशियस.
the reproductive organs in conspicuous. So it is also called cryptogamy. Okay, means hidden reproductive organs. यहाँ पे जो reproductive organs होते हैं वो होते हैं inconspicuous, तो it is known as cryptogamy. इसे हम क्या बोले? cryptogamy. टू कंडीशन होती है, एक होती है क्रिप्टोगैमी और एक होता फेनेरोगैमी. क्रिप्टोगैमी Cryptogamy means hidden reproductive organs. So in this division, cryptogamy division include first point thallophyta, second point bryophyta, first point thallophyta, second point bryophyta, third point टेरिडोफाइटा. तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड लास्ट टेरिडोफाइटा. दिस थ्री डिवीजन इंक्लूड एज द क्रिप्टोगैमी. तीनों डिवीजन किस में आ रहे हैं? क्रिप्टोगैमी में आ रहे हैं. और क्रिप्टोगैमी मीन्स हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? हिडन या इनकंसिपिशियस. इसको आप ध्यान रखिए, reproductive organs are hidden or inconspicuous. Okay, then as the phanerogamy. On the other hand, plant with well differentiated reproductive tissue and that ultimate makes seed, and it is also called phanerogames. Phanerogames के अकॉर्डिंग आया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे मैंने क्या क्रिप्टोगैमी और सेकंड क्या फेनेरोगैम्स या फेनेरोगैमी. ओके, तो एज द नेक्स्ट क्या फेनेरोगैम्स. एंड फेनेरोगैम्स मीन्स reproductive organs are well differentiated and it's included as a seed, and phanerogames include as the two division. First gymnosperm and second point angiosperm. So seed are the result of reproductive process. They consist of the embryo along with the stored food which serve for the initial growth of the embryo during germination. This group is further classified based on the whether the seed are nagged enclosing in fruit, and giving us two group. First gymnosperm और second क्या आ जाएगा? angiosperm. So as the first क्या है? जिम्नो और second क्या है? angiosperm. तो फर्स्ट आपने क्या स्टडी किया? यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा फर्स्ट क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म और सेकंड पॉइंट आ जाएगा एंजियोस्पर्म. तो एज द फर्स्ट पॉइंट जिम्नो और सेकंड पॉइंट एंजियो. ओके, सो एज द फर्स्ट पॉइंट जिम्नोस्पर्म. The term is made from Greek word gymno. Gymno means nag and sperma means seed. Means the plants present nagged seed. Plants में क्या पाया? nagged seed. The plant of this group bear nagged seed and are usually perennial, evergreen, woody. ये क्या हो? इनकी हैबिटेट्स हो गई यहाँ पे. एग्जाम्पल क्या है? साइकस, पाइनस. So Cycas and Pinus, it's the example of division gymnosperm. Gymnosperm के अकॉर्डिंग क्या आ रहा? Cycas and Pinus. Okay. Then as the angiosperm, and angiosperm include as the flowering plants. And angiosperm classified two classes on the base of seed are means seed are divide one cotyledons
only one, then has a two cotyledons, dicot and monocot. So this word is made from the Greek word angio means covered, sperma means seed, means यहाँ पे क्या seed क्या होते हैं, covered होते हैं. Angiosperm means seed are covered. The seed develop inside an organ which is modified to become fruit. ओके, सीड कहाँ पे होते हैं, इनसाइड अ फ्रूट. फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड. दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, यहाँ पे राइट की दे रहा हूँ. एंजियोस्पर्म इंक्लूड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इस सभी आते हैं आपके एंजियोस्पर्म में. ओके, और अपने डाउट बताते रहिए. सो द एंजियोस्पर्म इंक्लूड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स एम्ब्रियो सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटाइलेडॉन्स. प्लांट्स एम्ब्रियो में जो स्ट्रक्चर होती है सीड के पास उसे क्या बोलते हैं हम, कोटाइलेडॉन्स. कोटाइलेडॉन्स कॉमनली कॉल्ड सीड लीव्स. और कोटाइलेडॉन्स को क्या बोलते हैं, सीड लीव्स, बिकॉज इन मैनी इंस्टेंस दैट या दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन अ सीड जर्मिनेट. Thus, cotyledons represent a bit of pre-designed plants in the seed. The angiosperm divide into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seed. The plant with seed having one single cotyledons, it means monocot, and plant with number of two cotyledons, it means dicot. ओके, अब यहाँ पे आप आइए पेज नंबर 88. इसको आपको कंप्लीट करना है और जो भी आप राइट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. जैसे स्टार्टिंग किंगडम प्लांटी, आपने क्या राइट किया, किंगडम प्लांटी. इसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको राइट करना है. और जो टॉपिक यदि आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको क्लियर दे दूँगा. ओके, तो स्टार्टिंग में जो दिया गया यहाँ पे क्या दिया, किंगडम प्लांटी. आप राइट करेंगे किंगडम प्लांटी. ओके, इसमें एक लाइन आप राइट कर देंगे, किंगडम प्लांटी इंक्लूड एज द डिफरेंट डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. और इसके पहले एक लाइन और लिखिए, बाद में इसको राइट कीजिए. किंगडम प्लांटी आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस. फर्स्ट पॉइंट, differentiated and non-differentiated plant body. Second point, present spatial tissue and absent. And third point क्या आएगा बताइए, सीडा नेक एंड सीडा इनसाइड अ फ्रूट. अब इसके बाद आप राइट करेंगे डिवीजन थैलोफाइटा. और यहाँ पे आप राइट करें फर्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड, रूट, स्टेम, लीव्स. ओके, सेकेंड पॉइंट, इन दिस डिवीजन बिलोंग टू द एल्गी. थर्ड पॉइंट, सम एग्जाम्पल लाइक एज द चारा, अल्वा, क्लेडोफोरा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा. इसके बाद आएगा यहाँ ब्रायोफाइटा. ओके, फर्स्ट सेकेंड देन एग्जाम्पल. सेम कंडीशन यहाँ पे, प्लांट बॉडी दिस ग्रुप इट इज नॉन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके, देन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर. एंड देन एज द सम एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया. इसमें भी आपके आ जाएंगे 2 पॉइंट प्लस एग्जाम्पल. देन
टेरिडोफाइटा। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स। सेकेंड पॉइंट, present spacer tissue like xylem and phloem, and these tissue it has the conduction of water, mineral and food material. Then some example of pteridophyta like as the Mercansia, Equisetum fern। और यहीं पे आप राइट करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए में क्या आएगा, क्रिप्टोगैमी, और पॉइंट बी में क्या आएगा, फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में क्या आएगा, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्सिपिशियस। और फेनेरोगैमी में क्या आ जाएगा, फेनेरोगैमी इंक्लूड एज अ सीड, ओके, एंड फेनेरोगैमी इंक्लूड एज अ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बाद आप हेडिंग राइट करेंगे जिम्नोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म इंक्लूड एज द नेक्स्ट सीड, ओके, देन एज द प्रेजेंट स्पीशियल टिश्यू, एग्जाम्पल एज द साइकस एंड पाइनस। एंड लास्ट पॉइंट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इंक्लूड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स, and angiosperm classified two class, dicot and monocot, ओके। अब यहाँ पे जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन दिया पेज नंबर 88, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना। स्टार्टिंग में प्लांट्स कंप्लीट करते जाइए और जहाँ डाउट है पूछते जाइए। प्लांट्स क्या दिया, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, क्या है यहाँ पे, थैलोफाइटा। देन हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, बाकी सब आ जाएंगे। देन यहाँ पे क्या होता है, विदाउट स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू, एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा। देन विथ वेस्कुलर टिश्यू, टेरिडोफाइटा। अब इसी में क्या बताया, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, टेरिडोफाइटा डू नॉट प्रोड्यूस सीड, एंड विदाउट या विथ क्या बताइए, इसमें क्या आएगा, विथ वेस्कुलर बंडल। और दूसरा आएगा प्रोड्यूस सीड, इसके अकॉर्डिंग आएगा फेनेरोगैम्स। देन बियर नेट सीड, जिम्नोस्पर्म, बियर सीड इनसाइड अ फ्रूट, एंजियोस्पर्म। देन टू कंडीशन, हैव सीड विथ टू कोटाइलेडॉन्स, डाइकॉट, एंड हैव सीड ओनली वन कोटाइलेडॉन्स, मोनोकॉट, ओके। तो इस आउटलाइन क्लासिफिकेशन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ किंगडम, कौन सा किंगडम, प्लांटी। इसके अलावा यहाँ एक्टिविटी 7.2 है, इसमें अभी समझाते हैं। देन यहाँ पे NCERT 3 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्या है, विच डिवीजन एमंग प्लांट आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, थैलोफाइटा। सेकेंड, हाउ आर टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम द फेनेरोगैम्स। तो टेरिडोफाइटा प्रेजेंट स्पोर एंड फेनेरोगैम्स प्रेजेंट सीड। देन नेक्स्ट, हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट नेक्स्ट सीड एंड एंजियोस्पर्म प्रेजेंट सीड और इनसाइड अ फ्रूट। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, NCERT क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे दी है एक्टिविटी 7.2 पेज नंबर 88। इस एक्टिविटी में क्या दिया गया, सॉक सीड ऑफ ग्रीन ग्राम्स, wheat, maize, pea and tamarinds. Once they become tender, try to split the seed. Do all the seed break into the two nearly equal halves? इन सीड को आपने कहा पानी में रखा और फिर देखते हैं यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इक्वल हाफ्स है यहाँ पे नहीं है। यदि इक्वल हाफ्स है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। द सीड दे डू नॉट आर डाइकॉट सीड एंड द सीड दे डू नॉट आर मोनोकॉट सीड, मीन्स दिस एक्टिविटी वेरीफाई डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये एक्टिविटी वेरीफाई क्या कर रही है
कि सीड आपका डाइकॉट होगा कि मोनोकॉट होगा। इस एक्टिविटी में आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ टेक लुक एट रूट, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ दिस प्लांट। इसके अलावा आप देखेंगे रूट किस टाइप की है, लीव्स कैसी है, फ्लावर क्या है। देन इन प्लांट्स में किस टाइप की रूट पाई जा रही है, टैप रूट की फाइब्रस, और किस टाइप का विनेशन पाया जा रहा लीव्स में, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट विनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वेन्स क्या होते हैं, एक अल्टरनेट पैटर्न में नहीं होते हैं। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, इनका जो सीक्वेंस है एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल। तो इससे बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। तो एज द वेनेशन आर टू टाइप, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। देन हाउ मेनी पेटल्स आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट। पेटल्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं काउंट कर दिए। Then can you write down the further characteristic of monocot and dicot on the basis of observation। मतलब यहाँ पे कंपेयर आपको बताना डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या होता, डाइकॉट प्रेजेंट नंबर ऑफ कोटाइलेडॉन्स 2 एंड मोनोकॉट प्रेजेंट नंबर ऑफ कोटाइलेडॉन्स 1। एक ट्रिक और बता रहा हूँ, DR, डी से डॉक्टर, DR डॉक्टर लिखते हैं, तो यहाँ पर D से यहाँ पे आया डाइकॉट, R से क्या, रेटिकुलेट। मतलब डाइकॉट में जो विनेशन होता है वो होता है रेटिकुलेट, और मोनोकॉट में जो विनेशन होता है वो होता है पैरेलल। और विनेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स। वेन्स का लीव्स में अरेंजमेंट किस टाइप का है, आप कोई पत्ती तोड़िए वहाँ पे देखिए किस टाइप की वेन्स अरेंजमेंट है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है वेनेशन। ओके स्टूडेंट, तो आपके चैप्टर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ डाउट है बताइए। और अभी करंट में जो चल रहा है चैप्टर नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पहले आपने स्टडी क्या किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये पूरा क्लासिफिकेशन किस बेस से बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आज जो बताया ये क्या था, ओनली डिवीजन प्लांटी का। इसके अकॉर्डिंग क्या था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एज द एंजियोस्पर्म। एंड ईच डिवीजन एज द स्पेसिफिक फीचर। डिवीजन मीन्स स्टडी एज द प्लांट एंड फाइलम इंक्लूड एज द एनिमल। यदि आप एनिमल स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइलम। और वीडियो को आप लाइक भी करते जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, वहाँ पर रेड से होगा, 1 टाइम क्लिक कीजिए। ओके, तो इससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, नोट्स बनाइए, अपने डाउट बताइए। थैंक यू।